Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome you all to Forward Public School e-learning class 7th, subject Geography. Chapter is Agriculture Part 1. This is the reading and explanation, and I am Nilufar Raza. Take out page number 81 of your geography book. This is the chapter Agriculture. At the end of this chapter, inshallah, we'll be able to discuss the importance of agriculture as an economic activity. We'll be able to describe the following major types of farming: subsistence agriculture, intensive agriculture, extensive commercial agriculture, plantation, truck farming, mixed farming, cereal crops. We'll also be able to describe the salient features of irrigated and rain-shed agriculture in Pakistan and farming practices in mountainous areas. We'll also be able to describe the distribution of major crops in Pakistan and the factors of their distribution. We'll also be able to analyze major agricultural problems of Pakistan. We'll also be able to describe the irrigation system of Pakistan and problems associated with canal irrigation. Now we'll be studying the introduction of the chapter. Agriculture is practiced in most parts of the world. Nowadays, different methods of agriculture are introduced. Introduced means mutarif karana. You might have seen farmers practicing agriculture in almost all villages of our country. While traveling, you might have seen different farmers who are plowing their fields, or they are watering their fields, or they are just throwing the fertilizers in their fields, or they're just plowing their fields. They are involved in different activities. ठीक है. First they plow their fields and sow seeds in them. सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग कि वो हल चला के अपनी ज़मीन में, अपनी खेतों में, और वो उसको नरम करते हैं. एंड देन दे सो सीड, क्या करते हैं वो बीज बोते हैं. नेक्स्ट दे गिव वाटर थ्रू इरिगेशन. क्या करते हैं नेक्स्ट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप. अब ज़मीन को उन्होंने नरम भी कर दिया, देन उन्होंने अच्छी क्वालिटी का बीज भी बो दिया. अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि दे गिव वाटर थ्रू इरिगेशन. आपाशी के ज़रिए वो इन खेतों को सैराब करते हैं, वो इनको पानी देते हैं. आफ्टर दैट द क्रॉप ग्रोज, आफ्टर सम टाइम इट राइपन्स, फाइनली इट इज़ रेडी फॉर कटिंग. अब क्या होता है कि व्हेन दे ग्रो द क्रॉप, व्हेन दे सो द सीड, तो क्या होता है हर एक क्रॉप का, हर एक फसल का अपना एक ख़ास टाइम होता है जिसमें कि वो पक के तैयार होता है और उनकी फिर कटिंग होती है. ठीक है. First step, plowing the field. Second step, sowing the seeds. The third step, giving water to that or irrigating the lands. And the fourth step is that they are ripen and they are cut and they are delivered to the market or wherever it is used. Okay, now human life depends on agriculture. जो इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार होता है दैट इज़ ऑन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स मीन्स फराहम करना, फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वेयर, खुराक भी देता है प्लस तन ढांपने के लिए कपड़ा भी देता है. देयरफॉर वर्ल्ड्स इकोनॉमी मोस्टली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. इसी तरह से जो दुनिया की मईशत है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. दो जो मेजर चीज़ें हैं, खुराक की फराहमी प्लस तन ढांपने के लिए कपड़ा, बोथ ऑफ देम आर प्रोवाइडेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक अंदाजे के मुताबिक, एस्टिमेट मीन्स अंदाज़ा, अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट इज़ एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर. ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीपल, the world's population, they are involved in agriculture, they are employed in agriculture, they are attached with agriculture. ठीक है. employment means रोज़गार and associated means जुड़ा हुआ. Several countries of the world get their national income from agricultural production. कई ममालिक जो दुनिया के हैं, देयर मेन इकॉनमी इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. उनकी जो ज़रई पैदावार है, एग्रीकल्चरल मीन्स ज़रई एंड प्रोडक्शन मीन्स पैदावार. फॉर द इंडस्ट्रीज़ ऑफ आर कंट्री, हमारी मुल्क की सनत के लिए एग्रीकल्चर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जो एग्रीकल्चर है, जो ज़राअत है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. मैनी इंडस्ट्रीज़ लाइक शुगर मिल्स, बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सी सनतें जो होती हैं, जैसे कि शुगर मिल्स, चीनी बनाने के कारखाने, कॉटन इंडस्ट्रीज़, कपड़े बनाने की सनत, ऑयल एंड बनस्पति इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा, डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इनका क्या है कि द रॉ मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन दीज इंडस्ट्रीज़ इज़ प्रोवाइडेड बाय द
एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। जितनी फसल अच्छी होगी उतनी यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है दैट विल बी प्रोवाइडेड इन सफिशेंट अमाउंट एंड विद स्पीड एंड इन द सेम वे इट विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज commodities, these products. Agricultural products not only develops commerce and trade but also develop business of a country. Agricultural products जो होते हैं they not only develop commerce, ना सिर्फ वो तिजारत में हेल्प करते हैं बल्कि they also develop business of a country. वो एक मुल्क की जो है वो बिजनेस को भी वो डेवलप करते हैं, वो बिजनेस की डेवलपमेंट में वो हेल्प करते हैं. It has a positive impact on overall economy of a country and people become prosperous and happy. Now we are talking about the agriculture कि if the agriculture is good तो it has a positive impact means मस्बत असरात होते हैं इसके किस पे ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क की जो मजमूई मईशत है उस पर इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है. डेफिनेटली जब आपने ये कह दिया कि 60% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो जब फसल अच्छी होगी आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डेवलप करेगा तो आपके हर एक बंदे को अपना अपना शेयर जो होगा वो अच्छा मिलेगा और दे विल बिकम प्रॉस्परस एंड हैप्पी, खुश और खुशहाल होंगे वो. मीन्स जब उनकी जेब में पैसा होगा, जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस अकॉर्डिंगली बढ़ेगा, जब उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी, उनको उसी पैसे को वो यूटिलाइज़ करेंगे इन अटेनिंग देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स. तो ऑब्वियसली जब सेटिस्फाइड लाइफ जो होते हैं वो गुजारेंगे. ठीक है. नाउ this is we are starting page number 83 of your book. ठीक है. On this page the next topic is types of agriculture. Now we'll be studying about the different types of agriculture that are used especially in Pakistan. Throughout the world agriculture is practiced to fulfill basic needs and for commercial purposes. ठीक है. Now practiced means carried out, मश्क करना, fulfill means पूरी करना, basic means बुनियादी, needs means ज़रूरियात, commercial means तिजारती, purposes means मकासद. ठीक है. Now if you look at these, तो एग्रीकल्चर जो होता है वो क्या है कि it is fulfilling the basic needs of a country. Okay, so it is providing the basic necessities, the basic needs of the people of any country. ठीक है. There are different types of agriculture. There are various kinds of agriculture. हर एक इलाके के मुताबिक उनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं दे आर डिफरेंट, उन द मेथड ऑफ एग्रीकल्चर दैट इज़ यूज दे आर डिफरेंट. ठीक है. सबसे पहले है द फर्स्ट वन इज़ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, रवादारी. ठीक है. अब व्हाट इज़ रवादारी? व्हेन यू अर्न योर लाइवलीहुड, जब आप अपनी बसर औकात के लिए जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करते हैं दैट इज़ द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. देन इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इसमें क्या है कि इसको वर्ल्डली अगर आप मीनिंग देखो तो इट इज़ कॉल्ड शदीद एग्रीकल्चर. ठीक है. एक्सट्रीम जिसे आप कहते हैं. देन इज़ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, देन इज़ कमर्शियल एग्रीकल्चर. वी विल बी स्टडिंग इट वन बाय वन इन डिटेल इंशाल्लाह इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. कमर्शियल एग्रीकल्चर, फिर आपके पास प्लांटेशन एग्रीकल्चर, देन ट्रक फार्मिंग, देन मिक्सड फार्मिंग एंड देन इज़ सीरियल क्रॉप्स. सो दीज आर द वेरियस types of agriculture or farming that is used to fulfill the basic needs of the people of any country. Now subsistence agriculture is the first type of agriculture that we'll be studying. It is an old method of agriculture. It started when humans started living together in valleys of river Nile, Euphrates and the river Indus. अब दिस इज़ द ओल्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर. ज़रात का जो है वो एक पुराना तरीका है. एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट? इट स्टार्टेड व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड टू लिविंग टुगेदर एज अ सोसाइटी और एज अ फैमिली. ठीक है. इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका. This is still practicing. This is still being practiced in developing countries. Means those countries which are not developed fully, who are lacking who are weak.
ठीक है, दे आर स्टिल यूजिंग दिस। इसमें क्या होता है कि द पीपल दे ग्रो क्रॉप्स फॉर द use of their family or their neighborhood. In subsistence agriculture, farmers grow those crops which are used as food for their families. ठीक है, वो फसलें वो उगाते हैं जो कि उनकी फैमिलीज़ या उनके रिलेटिव्स या उनकी सराउंडिंग्स में यूज़ होती हैं एज फूड। दीज क्रॉप्स इंक्लूड वीट, राइस, मेज़ एक्सेट्रा। इन फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं? गंदम, चावल और मकई वगैरह। Beta ji, turn on to next page, page number 84. This is intensive agriculture. Shadid is the worldly meaning, literal meaning of intensive. In this type of agriculture, land is intensively cropped. ठीक है, crop means उगाया जाना। Best quality, आला मयार of seeds is sown. आला क्वालिटी के, आला मयार के जो बीज हैं वो इस्तेमाल होते हैं। Modern machinery and fertilizers, खाद are used, insecticides and pesticides, कीड़े मार अद्वियात और वो पेस्टिसाइड्स। लिटरल इसका अगर मीनिंग देखें तो ताउन आता है, ट्रांसफरेबल डिजीज़ जो होती है उसके लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, पेस्ट का होता है। इसमें जो बेस्ट क्वालिटी के जो कीड़े मार अद्वियात हैं वो इस्तेमाल होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स? बिकॉज वी वांट टू सेफगार्ड the production of our crops from insects and diseases. बीमारी, diseases means बीमारियाँ। For better yield, sufficient labor is applied. बेहतर पैदावार के लिए काफ़ी मिकदार में मेहनत तलब जो होता है वो हम मेहनत हम करते हैं, उस पर वो अप्लाई किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इट इज़ ट्राई टू गेट मोर प्रोडक्शन फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। नाउ व्हाट इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर? इसका बेसिक जो एम होता है वो ये है कि हम छोटे पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। फॉर दिस पर्पज़ व्हाट डू दे डू कि अपनी पूरी एफ़र्ट्स वो करते हैं कि मॉडर्न मशीनरी भी इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी के जो सीड्स हैं वो भी वो सो करें, और प्रोटेक्शन के लिए वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ वो मेहनत भी इस पे करते हैं, लेबोरियस वर्क उनका होता है। तो उससे, और अगेन आई विल रिपीट के बेसिक रीज़न इसका यही है कि इनका जो यील्ड पर एकड़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। नाउ दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट 1. Inshallah we'll be studying the rest of the chapter in the upcoming parts. Stay home, stay safe.